Hello friends, so now I am starting the next topic, fertilization and implantation. During copulation coitus, semen is released by the penis into the vagina. Insemination. The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization take place. ठीक है, ampullary region में पहुंच जाएंगे जहाँ पे fertilization होएगा. Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. ठीक है, fertilization सिर्फ और सिर्फ तभी occur होएगा जब ovum और sperm same time पे ampullary region पे पहुँचे हैं. ठीक है, can only if the ovum and sperm are transferred simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all the copulation lead to the fertilization and pregnancy. ठीक है, the process of fusion of a sperm with an ovum is called as the fertilization. ठीक है, the process of formation fusion of a sperm with an ovum is called as fertilization. ठीक है, एकदम सही बात है ना. During fertilization sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के समय पे जो स्पर्म्स आए हैं वो सबसे पहले कांटेक्ट में आते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर के साथ ओवम की, है ना, जोना पेल्यूसिडा लेयर के साथ ओवम की, एंड इंड्यूस करते हैं चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स. ठीक है, और इंड्यूस करते हैं चेंजेस किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, और ब्लॉक करते हैं द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. एडिशनल स्पर्म को उसमें नहीं जाने देते हैं और ब्लॉक करते हैं एंट्री. ठीक है, दस ये इंश्योर करता है दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम. दस ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए ओवम को. ठीक है, दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द ओवम. ओके, द सेक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम helps the sperm enter into the cytoplasm. ठीक है, जो सेक्रीशन है किसके, एक्रोसोम के, वो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा, है ना. ये बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि does it ensures that only one sperm can fertilize the ovum. The secretion of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. ठीक है, this induces the completion of the meiotic division. thus ये induce करता है completion किसका, meiotic division का of the secondary oocyte. ठीक है, this induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. ठीक है, the second meiotic division is also unequal. ठीक है, जो second meiotic division होता है वो भी क्या होता है, unequal होता है ना, and result करता है in the formation of second polar body. This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. ये बहुत ही बढ़िया लाइन है, इससे PYQ बनेगा और बन चुका है. ठीक है, जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन. तो जैसे ही स्पर्म ने एंटर करा जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करते हुए, तो उसका जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, secondary oocyte का. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of second polar body. ठीक है, जो second meiotic division है वो भी क्या है, unequal है, और result करता है in the formation of second polar body. Okay, and the haploid ovum ooted, और एक haploid ovum ooted. ठीक है, soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, सून जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है किसका, स्पर्म का, एंड दैट ऑफ द ओवम, ये फ्यूज करते हैं टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. ठीक है, और इससे क्या बनता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. समझ आया. इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम ooted, soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. How many chromosomes will be there in the zygote? One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. The sex of the baby has been decided at this stage itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY. Therefore,
all the haploid gametes ova produced by the female have a sex chromosome X, whereas in the male sperms the sex chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of the sperms carry the X chromosome while the 50% of the other carry the Y chromosome. Okay. After fusion of the male and female gametes to form a zygote would carry either XX or XY, depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. Okay, the zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would develop into a male baby. Okay. You will learn more about the chromosomal pattern in chapter 5. Chapter 5 कौन सा है आपका? जल्दी बोलेंगे, molecular basis of inheritance. उसको जल्दी अपन लाएंगे, इसका लेक्चर भी लाएंगे. Okay, that is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. Scientifically it is correct to say that the sex of the bachcha baby is determined by the father and not by the mother, because the father only has the contribution of different chromosome. Okay. The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage. ठीक है, जो माइटोटिक डिवीजन होता है ना जायगोट के अंदर, वो स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे जायगोट मूव करता है थ्रू द isthmus. अभी अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो ओवरी से जो फेलोपियन ट्यूब जोड़ रही होती है उसमें सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा होता है? इनफंडेबुलम, जिसके ऊपर फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं. वहीं से जो ओवा कलेक्ट हुआ है, फिर वो गया एम्पिलरी रीजन के ऊपर, जो कि वाइडेस्ट पार्ट था एम्पिलरी रीजन, वहाँ पे लिखा हुआ है. फिर उसके बाद वो गया है कहाँ पे? इस्थमस वाले रीजन के ऊपर. इस्थमस इज द नारो रीजन जो यूट्रस से जोड़ता है. तो जब वो जायगोट एम्पिलरी रीजन से इस्थमिक रीजन में जा रहा है ना, इस्थमिक रीजन में जा रहा है, तो उसमें माइटोटिक क्लीवेज शुरू हो चुका है. ठीक है, क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर्स. ठीक है, और ये फॉर्म करता है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं. ठीक है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड एज मोरूला. ठीक है, एम्ब्रियो with 8 to 16 blastomere is called as a morula. Okay, can you understand? Yes. कि जो एम्ब्रियो होता है 8 से 16 सेल्स का, उसको हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं, है ना. 16 ब्लास्टोमियर्स का is called as morula. ठीक है, the morula continues to divide and transforms into blastocyst. ठीक है, जो मोरूला है वो डिवाइड कंटिन्यूसली करता रहता है और फिर उससे क्या बन गया? अपना ब्लास्टोसिस्ट बन गया एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस. ठीक है, आज जब ये फर्दर मूव करता है इनटू द यूट्रस, है ना, मोरूला, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्ट and the inner group of cells attached to the trophoblast cells called as the inner cell mass. ठीक है, the trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated as the embryo. कितना बढ़िया लिखा हुआ है. वो बोल रहे हैं कि जब मोरूला जो है वो कंटिन्यू करता है डिवाइड और ट्रांसफॉर्म कर लेता है खुद को ब्लास्टोसिस्ट में. तो इसको अच्छे से सुनेंगे कि मोरूला आया 8 to 16 सेल्स का, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, है ना. जैसे जैसे वो मूव कर रहा है फर्दर यूट्रस के अंदर, है ना. ये फेलोपियन ट्यूब थी, ये यूट्रस था. तो जब वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर आ रहा है तो पहले वो मोरूला था 8 से 16 सेल्स का, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बन के आ रहा है यूट्रस के अंदर, है ना. एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, जो ब्लास्टोमियर्स जो है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर वो अरेंज हो जाते हैं 2 लेयर के अंदर. आउटर लेयर तो होती है ट्रोफोब्लास्ट की, है ना, आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड एज द इनर सेल मास. ठीक है, आउटर लेयर जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट में अब जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अपने आप को वो कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे कि मैं तो ट्रोफोब्लास्ट बना लेता हूँ, कुछ सेल्स बोलेंगे मैं इनर सेल मास बन जाता हूँ. ठीक है, तो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच हो जाती है टू द एंडोमेट्रियम. ठीक है, अब जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो बाहर बनी थी वो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम से जाके, है ना, मतलब यूट्रस की लाइनिंग से जाके, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना होता है वहाँ पे एंडोमेट्रियम पे जाके कौन सी ट्रोफोब्लास्ट की ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो जाके इम्प्लांट हो जाती है उस एंडोमेट्रियम में, है ना.
and the inner cell mass gets attached to the trophoblast layer called as the trophoblast layer then gets attached to the endometrium of the inner cell mass get differentiated into embryo. ठीक है, और जो inner cell mass है वो differentiate हो जाता है एक embryo के अंदर. ठीक है, इतना समझ आ गया. inner cell mass embryo में differentiate हो जाता है, trophoblast endometrium से जाके जुड़ जाती है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रिपीटेडली, है ना, रैपिडली और रिपीटेडली वो डिवाइड करते रहते हैं. अटैचमेंट जब हो गया यूट्राइन सेल से तो डिवाइड करते हैं रैपिडली और कवर कर देते हैं पूरी ब्लास्टोसिस्ट को. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को पूरी को कवर कर देते हैं, है ना. ये ऐसे ही ब्लास्टोसिस्ट थी तो इसके ऊपर पूरी पे कवरिंग बना लेंगे. कौन से सेल्स, यूट्राइन सेल्स. ठीक है, endometrium as a result the blastocyst become embedded in the endometrium in the uterus. ठीक है, इस कारण से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरी एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगी, एम्बेड हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. और इसी को हम इम्प्लांटेशन बोल देते हैं और इसी को हमने पूरे प्रोसेस को टर्म बोला है प्रेगनेंसी. ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि मियोटिक डिवीजन हुआ सेकेंडरी oocyte के अंदर. सेकेंड मियोटिक डिवीजन अनइक्वल हुआ जिससे फॉर्मेशन हुआ था सेकेंड पोलर बॉडी का और ऊटेड को हम ओवम भी कहते हैं. फिर उसके बाद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का और ओवम का उसने फ्यूज़ करके जायगोट बना दिया था, है ना. तो ये सब पूछा जा सकता है आपसे कि बोर्ड्स के अंदर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए प्रोसेस को. ठीक है, तो फिर आपको याद रखना है इनको. क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीजन है. फिर 2-4-8 सेल ब्लास्टोमियर बनते हैं. मोरूला 8 to 16 सेल्ड है. फिर मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है. ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट होती है, इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है. फिर जो यूट्राइन सेल्स होते हैं वो पूरे को कवर कर लेते हैं और इम्प्लांटेशन कर देते हैं. ठीक है, और ये जो यहाँ पे डायग्राम है इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे, है ना, कि ये पूरा डायग्राम है. ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन दिखा रखा है. ये ब्लास्टोसिस्ट है. ठीक है, अब अपन आते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर. इम्प्लांटेशन हो गया, अब वो चलेगी प्रेगनेंसी 9 months पीरियड 280 days. ठीक है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, बच्चा बड़ा हो रहा है. बच्चा नहीं बोलते वैसे, फीटस बोलते हैं. ठीक है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं आप लोग. आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कॉल्ड एज द कोरियोनिक विलाई. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये, इम्प्लांटेशन जब हो गया तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो अपीयर करते हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड एज द कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाई द यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड. ठीक है, जो कि सराउंडेड होते हैं यूट्राइन टिश्यू से एंड मेटरनल ब्लड से. ठीक है, आप समझे इतना कि इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर करते हैं ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड एज द कोरियोनिक विलाई, है ना. इसको वापस पढ़ेंगे अपन, बहुत ही बढ़िया लाइन है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर करते हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं. विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. ठीक है, ये जो कोरियोनिक विलाई अपीयर होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट सेल के ऊपर, ये सराउंडेड होते हैं यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से. जो कोरियोनिक विलाई है एंड द यूट्राइन टिश्यू ये इंटरडिजिटेड हो जाते हैं. ठीक है, ये इंटरडिजिटेड होता है एक साथ एक दूसरे के साथ और जॉइंटली एक स्ट्रक्चरल फॉर्म कर लेते हैं और फंक्शनल यूनिट फॉर्म कर लेते हैं बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो विच इज़ द फीटस एंड द मैटरनल बॉडी विच. इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं. तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेसेंटा कैसे बनता है, तो कोरियोनिक विलाई ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड यूट्राइन सेल्स टुगेदर फॉर्म एन इंटरडिजिटेशन एंड फॉर्म प्लेसेंटा. ठीक है, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood, the chorionic villi and the uterine tissue become interdigited with each other and jointly form the structural and functional unit between the developing embryo and fetus and the mother maternal body is called as the placenta. The placenta facilitate the supply of oxygen. ठीक है, अब ये जो placenta बनी है
ये फैसिलिटेट करेगी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, ठीक है। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, ठीक है। जो प्लेसेंटा है ये रिमूवल करती है एक कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल का, और फैसिलिटेट करती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, जो प्लेसेंटा है वो कनेक्टेड है एम्ब्रियो से थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। जो प्लेसेंटा है वो कनेक्टेड रहती है एम्ब्रियो से, किससे, एक अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो कि हेल्प करती है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, ओके। फिर क्या है, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, और कि ये बहुत बार PYQs में स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आ गई है कि प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू and produces several hormones like human chorion gonadotropin HCG, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है। और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन which is HPL and estrogen, progesterone etc. in the later phases of pregnancy. A hormone called relaxin is also secreted by the ovary, ठीक है। एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन जो कि ओवरी सेक्रीट करती है इन द लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि जो रिलैक्सिन है वो ओवरी से आ रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा से नहीं आ रहा है, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। और ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सब प्लेसेंटा से आते हैं, ठीक है। Relaxin is secreted by the ovary. Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। उसमें से भी HCG और HPL सेक्रीट होते हैं प्लेसेंटा से, और जो रिलैक्सिन होता है वो सेक्रीट होता है ओवरी से, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या है, आर प्रोड्यूस इन वुमेन। In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogen and progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood, ठीक है। और जो अदर हार्मोन्स जो पहले से प्रेजेंट थे फीमेल की बॉडी में, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सेवरल फोल्ड सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। In addition, during levels of other estrogen, progesterone, cortisol, prolactin को भी याद रखना है, milk secreting है ये, thyroxine are increased several folds in the maternal blood. Increased production of these hormone is essential for supporting the fetal growth. अगर फीटस की ग्रोथ अच्छे से करवानी है तो इन सब हॉर्मोन्स का बढ़ना और घटना चलता रहने देना चाहिए, एकदम बढ़िया से इनको होते रहना चाहिए, ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी भी मेंटेन करके रखना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट, ठीक है। इम्प्लांटेशन जैसे ही होता है, जो इनर सेल मास एम्ब्रियो है ना, वो डिफरेंशिएट कर लेता है इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एज द एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर कॉल्ड एज द एंडोडर्म, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इमीडिएटली जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट कर लेगा एक आउटर लेयर के अंदर जिसको हम एक्टोडर्म कह रहे हैं, और एक इनर लेयर के अंदर जिसको हम एंडोडर्म कह रहे हैं, ठीक है। अ मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. These three layers give rise to all the tissues organs in the adults, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि immediately after implantation the inner cell mass differentiate into an outer layer called as the ectoderm and the inner layer called as the endoderm. A mesoderm soon appears between the ecto and the endoderm. These three layers give rise to all the tissues and organs in the adults, ठीक है। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called as the stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. जो inner cell mass होता है उसके पास stem cells present होते हैं,
जिसके पास पोटेंसी होती है कि वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स के और टिश्यूज़ को बना पाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, what are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? The human pregnancy lasts for 9 months, 280 days. Do you know how many months pregnancy lasts in dogs, elephants, cats? Find out. In human beings, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. तो सबसे पहले जो remarkable event occur होता है वो क्या होता है, heart is formed in the first month of embryonic development. Okay, and then the first sign of the growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. तो वो feeling ही अलग होती है कि जब हार्ट बीट करते हैं, हार्ट बीट बच्चे का पहली बार सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, तो वो पहला रिमार्केबल साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है। जो एंड फर्स्ट मंथ के एंड के ऊपर तो बन गया हार्ट, ठीक है। कोई हर्ट बोलता है, कोई हार्ट बोलता है, तो कुछ भी, ठीक है। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद जो सेकेंड मंथ है प्रेगनेंसी का, उसके एंड पे फीटस डेवलप कर लेता है लिम्स एंड डिजिट, हाथ और पैर डेवलप कर लेता है फीटस, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 3 मंथ्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल द लिम्स, external genital organs as well developed. The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. ठीक है, जो फर्स्ट मूवमेंट है फीटस का प्लेसेंट यूट्रस के अंदर ही, और जो अपीयरेंस है हेयर का ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ. तो अभी तक पहले मंथ में हार्ट बना, दूसरे मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स बन गए, तीसरे मंथ के एंड में मेजर ऑर्गन्स बन गए, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, लिम्स, ठीक है। और 5वें मंथ के एंड के ऊपर क्या हो गया, एक तो हेयर्स विजिबल होने लग गए, है ना, एक तो हेयर्स विजिबल होने लग गए, और फर्स्ट मूवमेंट देख लिया अपन ने फीटस का, ठीक है। फीटस का पहला मूवमेंट 5th मंथ के एंड पे, और क्या, हेयर्स ऑन द हेड, ठीक है। फिर उसके बाद है बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, मतलब एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 months, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स एंड आईलिड्स सेपरेट एंड आई लैशेज आर फॉर्म्ड, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स आई लैशेज जो होती है वो बन जाती हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, है ना, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेज बन जाती हैं, है ना, ये आई लैशेज होती हैं, ये आईलिड जो होती है, ये आईलिड होती है ना, ये ऊपर वाली आईलिड, ये नीचे वाली आईलिड, तो ये आईलिड्स जो होती हैं सेपरेट हो जाती हैं 6th मंथ के एंड पे, और ये जो आई लैशेज होती हैं ये बन जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, ये हो गया अपने 24th मंथ के एंड पे, है ना, और पूरी जो बॉडी है वो फाइन हेयर्स से कवर हो जाती है, फाइन हेयर्स। बाय द एंड by the end of the 9th months of the pregnancy the fetus is fully developed and is ready for delivery, which is parturition, ठीक है। जब पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, हर का अलग होता है, जैसे एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग, प्लांट्स, एनिमल, सबका अलग होता है, प्लांट्स का तो सॉरी, मतलब एनिमल्स का सबका अलग होता है ना, तो वो डिलीवरी के लिए रेडी हो गया अब फीटस, ठीक है। उसके बाद आता है अपना लास्ट टॉपिक विच इज़ पार्चुरेशन एंड लेक्टेशन, एंड फिर समरी भी है, तो एक साथ इसको निपटाते हैं भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा और लंबा वीडियो हो जाएगा, 35 मिनट्स तक हो जाएगा मैक्सिमम। पार्चुरेशन एंड लेक्टेशन, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, ठीक है। एवरेज ड्यूरेशन जो होता है प्रेगनेंसी का वो अबाउट कितना होता है, 9 महीने होता है, विच इज़ कॉल्ड एज द जेस्टेशन पीरियड. विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन किसका, यूट्रस का, at the end of the pregnancy causes expulsion of the delivery of the fetus, ठीक है। और ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर हो रहे हैं, मायोमेट्रियम के अंदर यूट्रस के,
The process of the delivery of the fetus is called as the parturition. Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta. The signals from parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called as the fetal ejection reflex. ठीक है. This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin acts on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. ठीक है, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन. तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, जो कि इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, है ना. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं इसको. और ये ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction, है ना, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contractions. This lead to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. Parturition soon after the infant is delivered. The placenta is also expelled out of the uterus. ठीक है. ओके. तो ये बहुत ही अच्छे से दैट ये रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन का मैटरनल पिट्यूटरी से. ये एक्ट करता है यूट्राइन मसल के ऊपर, जिससे स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ये स्टिमुलेट करता है फर्दर सेक्रीशन ऑक्सीटोसिन का, और स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता है बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रीशन कंटिन्यूज जब तक रिजल्टिंग होता है स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, जिससे एक्सपल्शन होता है बेबी का आउट ऑफ द यूट्रस टू द बर्थ कैनल. Parturition soon after the infant is delivered. The placenta is also expelled out. The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation. ठीक है. तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिल्क जो है वो कब से सेक्रीट होना लग जाता है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, called as by the process called as lactation. This helps the mother in feeding the newborn. ठीक है. The milk produced during the initial few days of lactation is called as colostrum, which contains several antibodies. जो कि colostrum जो कि contain करती है बहुत सी several antibodies, जो कि absolutely essential है to develop resistance for newborn babies. ठीक है. Develop resistance for newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. ठीक है. Colostrum which secretes which contains several antibody absolutely essential to develop resistance for the newborn babies, है ना. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor by bringing up a healthy baby. ठीक है. एब्सोल्युटली ओके एकदम अच्छे समझ आ गया. वापस देख लो कि पार्चुरेशन इंड्यूस होता है बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. पार्चुरेशन इज इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, दोनों से आते हैं, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एज द fetal ejection reflex, which induces mild uterine contraction called as fetal ejection reflex. और वापस से याद कर लो, 1 महीने बाद आपके पास क्या होता है, हार्ट की साउंड्स आने लग जाती हैं. फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस डेवलप कर लेता है लिम्ब और डिजिट्स, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटा. फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड कब होता है? ड्यूरिंग द 5th मंथ. ठीक है. एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक्स पे सेकेंड ट्राइमेस्टर पे क्या होता है, कवर्ड हो जाते हैं विद द हेयर्स से. आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस बन जाती हैं, और 9th मंथ के एंड पे फीटस जो होता है वो फुली डेवलप होता है और रेडी फॉर हो जाता है डिलीवरी. ठीक है. उसके बाद अपन आते हैं
थोड़ी सी समरी है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं. मैक्सिमम 4 मिनट लगेंगे, 3-4 मिनट, 35 मिनट्स में हो जाएगा कंप्लीट. ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवीपेरस. ह्यूमंस जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवीपेरस होते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड द एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एकदम सही बात है ना. Each test is about 250 compartments called as the testicular lobules. Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Each seminiferous tubule is lined inside by the spermatogonia and the Sertoli cell. The spermatogonia undergo meiotic division, है ना. स्पर्मेटोगोनिया में अंदर मियोटिक डिवीजन होता है लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग germ cell. The Leydig cell outside the seminiferous tubule synthesize and secrete testicular hormone called as the androgen. The male external genitalia is called as the penis. फिर उसके बाद क्या है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, अ यूट्रस, अ वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड. ठीक है. द ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम एंड द सम स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड एज ओवेरियन हार्मोन. ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा. ठीक है. ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा. द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना आर फीमेल accessory ducts. ठीक है. द यूट्रस हैज 3 layers नेमली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम. ठीक है. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस. जहाँ मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, और वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. Spermatogenesis results in the formation of sperms that are transported by the male accessory duct. A normal human sperm is composed of a head, neck, middle piece and a tail. Head, neck, middle piece and a tail. 4 parts होते हैं. ठीक है. The process of formation of a mature female gamete is called as the oogenesis. The process of formation of mature male gamete is called as female gametes oogenesis. The reproductive cycle of female primates is called as the menstrual cycle. Menstrual cycle starts only after attaining sexual maturation, puberty. During ovulation only one ovum is released per menstrual cycle. The cyclic changes in the ovary and the uterus during the menstrual cycle are induced by the changes in the levels of the pituitary and the ovarian hormone. After coitus, sperms are transported into the ampulla region where the sperms fertilizes the ovum, leading to the formation of a diploid zygote. The presence of X or Y chromosome in the sperm determines the sex of the embryo. The zygote undergoes repeated mitotic division to form a blastocyst. ठीक है. जो zygote होता है ये undergo करता है repeated mitotic division to form a blastocyst, है ना, which is implanted into the uterus resulting in the pregnancy. After 9 months of the pregnancy, the fully developed fetus is ready for the delivery. The process of childbirth is called as parturition, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogen and oxytocin. Mammary gland differentiate during pregnancy. Mammary glands जो होते हैं differentiate करते हैं pregnancy के दौरान और secrete करते हैं milk after childbirth and secrete milk after childbirth. The newborn baby is fed milk by the mother lactation during the initial few months of the growth. Okay, so इसी के साथ अपना NCERT से पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर फिनिश होता है. बस ये एक बार ये डायग्राम देख लो. ये क्या है, प्लेसेंटल विलाए हैं, ये वाला है ना, ये तो दिखाई दिया था आपको. ये क्या है, प्लेसेंटल विलाए है, ये कैविटी है यूट्रस की, ये योक सैक है ना, ये योक सैक है, ये प्लेसेंटल विलाए है, ये एम्ब्रियो है, अम्बिलिकल कॉर्ड है ना विद इट्स वेसल्स. ये क्या है, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स. ये क्या है, एम्ब्रियो. ये क्या है, योक सैक. ये क्या है, कैविटी ऑफ यूट्रस. ये क्या है, प्लेसेंटल विलाए. ये क्या है, ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस. Okay, thank you, bye bye. Please like, share and subscribe.